एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है, और मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ करेंगी। आमीन। जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे जकरिया उसका दूसरा अध्याय उसकी 10 से लेकर 13 है। हे सिय्योन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहूदा के पवित्र देश इसमें अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जाकर और अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। ये परमेश्वर का जिंदा का नाम है। वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारे को मतलब सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4:4-7। Thank you. Praise the Lord. I will read from the Holy Bible from Luke chapter 1 from 26 to 38. And in the 6th month of angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came unto her and said, Hail thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. And she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation was this. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found the favor with God, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of the father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and for his kingdom there shall be no end. Then Mary said unto the angel, How shall this be seen? I know not a man. The angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come unto thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also the holy thing which shall be born for thee shall be called the Son of the God. And behold, thy cousin Elizabeth, she had also conceived a son in her
old age, and this is her 6th month with who was called Byron. For the God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be unto me according to thy word. And the angel departed from her. सबको जय मसीह की। इस सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे संडे स्कूल बच्चों का ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। डियर लॉर्ड, ब्लेस दिस प्रोग्राम फॉर योर ग्लोरी। आमीन। पैदा होने की खुशी में आज मैं आपको एक गीत गा के सुनाऊंगी। पास आओ विश्वासियों, आनंद करने आओ, एक बारगी बेथलेहम के पास। जगत का त्राता बालक हुआ देखो, हम भजन करके पूजे, हम भजन करके पूजे, हम भजन करके पूजे स्वर्गीय राजा को। पास आओ विश्वासियों, आनंद करने आओ, एक बार की बेथलेहम के पास। स्वर्ग का राजा बालक हुआ देखो, हम भजन करके पूजे, हम भजन करके पूजे, हम भजन करके पूजे स्वर्गीय राजा को। I wish you all a Merry Christmas. Thank you. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Of his love, and wonders, wonders of his love.
heaven and nature sing, and heaven and nature sing. मेरा नाम है लीना सिंह। आज मैं बनी हूँ मदनरी। मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा आनंदित होती है। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिताची अलेक्जेंडर है। मैं प्रभु यीशु मसीह का पिता जोसेफ बना हूँ। प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको मैरी क्रिसमस। माय नेम इज जेनिफर सिंह। मैं एक एंजल हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाऊंगी। आकाश में प्रभु की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। लूका 2:14। थैंक यू। आप सबको जय मसीह। माय नेम इज अरुण। मैं एक गदरिया बना हूँ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब हम सब वही सबके जय मसीह की। मेरा नाम शारून है। मैं एक भेड़ बना हूँ। मैं बालक यीशु को देखने के लिए बेतलहम गया था। मेरे क्रिसमस टू। मैं वही तारा हूँ जिसने सबको रास्ता दिखाया। मेरा नाम बच्चे जेम्स है और मैं एक ज्ञानी पुरुष बना हूँ। हमने पूरब से एक तारा देखा और हम यहूदियों के राजा को प्रणाम करने आए हैं। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। माय नेम इज जोरथा। आई एम अ क्रिसमस ट्री। आई ब्रिंग होप टू यू। थैंक यू। वी विश यू मे क्रिसमस। वी wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and we Happy New Year. Thank you. को जय मसीह की। मैं अक्षय अलेक्जेंडर हूँ। मैं सेंटा बना हूँ। मैं सबके लिए मिठाइयाँ लाया हूँ और टॉफियाँ लेके आया हूँ। सबको मैरी क्रिसमस। My name is Joel Singh. I want to say 5 lines about Christmas. Christmas is celebrated all over the world on 25th December. Jesus Christ is born on this day. People decorate their houses and churches. People pray in the churches. Christmas is a festival of joy. Thank you. Merry Christmas to all.
ने गाया, प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका यीशु पैदा हुआ, तुम नाचो खुशी से आज, यीशु पैदा हुआ। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, ना उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जनेगी बेटा, ना उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुक्ति आया, आहा हा हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना उरलो वालाए, सजदे में सर झुकाए, आहा हा हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना उरलो वालाए, सजदे में सर झुकाए, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर प्रोग्राम के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कहती हूँ। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑफ ऑल। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के नहीं, पूरा विश्व का यानी पूरा दुनिया का प्रभु है। उनका आगमन निकट है, वो आने वाले हैं। हम सब दिल से इस साल यानी 2020 को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिलों में या हमारे जिंदगियों में जो अद्भुत कार्य किया है उनको याद करते हुए इस क्रिसमस को मनाएंगे। थैंक यू रेवरेंड सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन के माध्यम से आपने जो मौका दिया उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक्स अ लॉट। सारे बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू कॉन्ग्रेगेशन। हम सारे कलीसिया को भी थैंक यू कहते हैं। आप लोग ने पेशेंटली इस प्रोग्राम को देखा है। ऑन द बिहाफ ऑफ संडे स्कूल we wish you Merry Christmas and Happy New Year to all. God bless us all. God bless our country, India. Amen. All is calm.
सबको गुड मॉर्निंग, सलाम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज की इस इबादत में, स्पेशली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वर्शिप सभा में आप सबका स्वागत है। और विशेषकर आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, जैसे क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए हमारे क्रिसमस की सर्विस 2 सर्विसेज हैं। एक पहली सर्विस होगी 9:30 बजे से और दूसरी सर्विसेज होगी 11:30 बजे से। और 24 की रात की जो है शाम 7 बजे इवनिंग में प्रार्थना सभा होगी होली कम्युनिटी के साथ में। उसमें हमारे कैरल सिंगिंग भी होगी चर्च में। और इसके बाद न्यू ईयर में हमारी जो सर्विसेज होगी वो भी 1 जनवरी 2021 को एक पहली सर्विस 9:30 बजे और दूसरी 11:30 बजे। उससे पहले 31 दिसंबर की रात को भी शाम को 7 बजे सर्विस होगी प्रार्थना सभा होली कम्युनिटी के साथ में। आइए हम इन चीजों को देखते हैं खुदा के पाक कलाम से। आज की इस संडे सर्विस में हमारे जितने भी संडे स्कूल के बच्चे हैं, आज उनका जो जिस प्रकार से हम लोग क्रिसमस ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, हमारे सभी संडे स्कूल के बच्चे, हमारे जो टीचर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया इसमें। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि संडे स्कूल के बच्चों ने, हमारे टीचर्स जो हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं प्रमिला मैम, वो इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन वो इस समय आंध्रा में है, हैदराबाद, लेकिन वहाँ से भी वो अपने हमारे संडे स्कूल के बच्चों को, अपने टीचरों के साथ में जो उनके कुलीग हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। तो खुदा हमारे बच्चों को आशीष दे। आइए हम देखते हैं आज की जो विषय है, जो थीम है, वो लिया गया है कि परमेश्वर का आगमन, प्रभु यीशु का आगमन हमें हर्ष और शांति प्रदान करता है। द लॉर्ड्स कमिंग गिव्स जॉय एंड पीस टू हिज पीपल। और यहाँ पर देखते हैं खुदा के पाक कलाम से लिया गया है 4 जगहों से, स्पेशली जो पुराने नियम में और नए नियम से, खासतौर से गॉस्पेल उसका पहला अध्याय, लूका की इंजील का पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से 38 आयत तक। इसके बाद जकरिया नबी की किताब और उसका 4था अध्याय 4 आयत से 7 आयत तक। और पौलुस का खत फिलिपियंस के नाम, उसका 4था अध्याय 4 आयत से 7 आयत तक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है हमें हर्ष और शांति प्रदान करता है। यहाँ पर इस बात को देखते हैं मदर मेरी के जीवन से, मदर मेरी के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन और अपने लोगों को किस तरह से शांति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलता है। हम अगर देखते हैं कि वो किस प्रकार से मदर मेरी जो है कैसे अपने आप को, इस बात को मेरी को पता चलता है। मेरी के बारे में हम जानते हैं वह एक यहूदी, एक वो जुदा के गोत्र से, और इसके बाद एक कुंवारी लड़की जो हम टीनेजर भी कह सकते हैं। लेकिन उस समय जो उन्होंने नबी यशायाह ने भविष्यवाणी की थी, उसके 7वें अध्याय में यशायाह किताब में और उसके 14वें आयत में एक पुत्र जनेगी और वह शांति का राजकुमार होगा। वह शांति का राजकुमार और उसका अंत कभी नहीं होगा। शांति का राजकुमार एक गर्भवती पुत्र जनेगी, गर्भवती। और इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 7वें अध्याय के 14वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत सी आयत है कि बड़ी अच्छी सी, वो मैं खुदा का पाक कलाम जो है किस तरह से कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। यहाँ पर कितनी बड़ी बात है। सुनो, भविष्यवक्ता नबी का ये वचन है, एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। ये बहुत पुरानी बात है, यीशु मसीह के पैदाइश से पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी है। और अगर हम देखेंगे अपने भारतीय दर्शन में, भविष्य पुराण में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मिलता है, आगमन के बारे में मिलता है कि कुंवारी से जन्म होगा, कुंवारी से पैदा होगा। इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में
और इनका वहां रोल जो है कितना, अगर दोनों को देखा जाए, जोसेफ और मदर मेरी दोनों एक दूसरे कोई बहुत बड़े अमीर घराने से नहीं, बल्कि ये दोनों लोग एक इस तरह से थे, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें यीशु मसीह की पैदाइश होने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलती है, लेकिन इसके पीछे राज क्या है कि वह प्रभु यीशु मसीह खुद ये चुना, जो स्वर्ग को छोड़कर के इस दुनिया में आते हैं, धरती पर आते हैं, एक इंसान बनता है ताकि लोग आनंद पाएं, लोग खुशी मनाएं, लोग हर्ष मनाएं। और यही बात है जो है मदर मेरी के साथ। मदर मेरी जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात, जिस तरह से फरिश्ता जो है मदर मेरी के यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में संदेश सुनाता है, वहां पर लिखा है कि उस समय, उन दिनों में जो है, ये हम देखे हैं 26 आयत से लेकर के पहले अध्याय की लूका की इंजील और उसकी 26 आयत से 38 आयत तक, यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब जन्म की घोषणा होती है, तो वहां पर जो फरिश्ते, जो गैब्रियल नाम का जो स्वर्गदूत है, गलील के नासरत में कुंवारी मरियम के पास आता। देखिए लिखा, कुंवारी मरियम के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उसकी मंगनी हुई थी अभी, बट शी वाज नॉट कंसीव्ड। उनकी मंगनी हुई थी, उनका मरियम नाम था, और स्वर्गदूत उनके पास भीतर जाकर क्या कहता है, आनंद जय तेरी हो, बड़े हर्ष का संदेश सुनाता है। आनंद और जय तेरी, बहुत ही खुशी का संदेश सुनाता है। लेकिन एक खुशी की बात, इस बात को सुन करके कहे प्रभु तेरे साथ है। अब आप देखिए, आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ है, और वहां पर वो भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, ये किस तरह का अभिवादन है। स्वर्गदूत क्या कहता है, मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुम भयभीत न हो, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तो गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। देखिए उस समय बहुत सारे बच्चों का नाम यीशु था, लेकिन एक प्रभु यीशु का नाम जो इस वक्त यशायाह की किताब में लिखा है, और पुराने नियम की किताबों में जहां की हमें मिलता है, और यहाँ पर नए नियम की खुदागमन यीशु मसीह के इंजिल में जो सुसमाचार है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के बारे में जो है मत्ती की इंजिल, लूक की इंजिल में हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो रहा है। यीशु जगत का उद्धार करता, यीशु एज ए सेवियर, जो हर्ष का दाता, हर्ष देने वाले, शांति देने वाले प्रभु। और वहां कहते हैं वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात सुन करके मदर मेरी कहती है, मैं उस मनुष्य को भी अभी नहीं जानती, वह ये क्या बात है, मेरे तरफ किस तरह से ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर मेरी सरप्राइज, दो बातें, मेरी सरप्राइज, मेरी इस बात को सरप्राइज करती हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने बड़ा हम्बल, बड़े नम्र तरीके से, बड़े सच्चाई से परमेश्वर के बिफोर, परमेश्वर के सामने जो है अपने आप को उपस्थित करते हैं। परमेश्वर के सामने इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर की दासी हूं। यह कैसे हो सकता है, मैं जो कुछ हूं, परमेश्वर का जो फेवर मेरे साथ है, मैं उसके लिए वो सरप्राइज करती है कि हाउ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा हम कि उनका सरप्राइज करना कितनी बड़ी बात है, कि परमेश्वर जो है वहां पर किस तरह से जीसस केम, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आते हैं एज ए सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का उद्धार करता बनकर के आते हैं। इसके बाद दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह आते हैं, ही केम टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ गॉड। यानी वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो प्रॉमिस है, जो नबियों की बातें हैं, उसको पूरी करने के लिए आते हैं, उस बात को पूरी करना।
दूसरी बात अगर आप देखें कि मेरी सरेंडर 34 आयत से और उसके 38 आयत अगर आप देखें तो मेरी सरेंडर, मेरी सरप्राइज, मेरी सरेंडर। यहां पर क्या है? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। हाउ इट्स पॉसिबल? आई डोंट नो दैट मैन। यह कैसे हो सकता है? स्वर्गदूत उसको उत्तर देता है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और भी हम देखते हैं यहाँ पर जो लिखा है जरमाया, जकरिया नबी की किताब और उसके जो 4थे अध्याय में लिखा है 7वें आयत में कि मैं न तो बल से न तो शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा से जो कुछ होगा। तो यहाँ परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा से पवित्र आत्मा द्वारा यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है कि पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र जो है उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इसके बाद उन्हीं के साथ नहीं, उनकी जो नाइबर है, उनकी जो पड़ोसी हैं, उनकी जो कुटुंबनी है, उनके घर में उनके रिश्तेदार मेहमान हैं, वहां पर एलिशबा की बात करते हैं जो बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला या जिसको लोग बांझ कहा करते थे, उसका भी वो 5-6 महीने हो चुका है, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं कि क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। कितनी सरेंडर अपने आप को करती हैं मरियम, मेरी सरेंडर, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की दासी, परमेश्वर की एक सेविका हूं, मुझे उसके वचन के अनुसार हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह चीज हम देखते हैं कि मदर मेरी किस तरह से यहां पर उसे आनंद मिलता है। वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, यह क्रिसमस का जो पर्व है, यह क्रिसमस का जो समय है, हमें आनंद देने के लिए आता है, हमें शांति देने के लिए आता है, हमें हर्ष देने के लिए आता है। परमेश्वर जगत से प्यार किया है, जगत का उद्धार करता बन करके वो सबसे प्रेम करता है। प्रभु किसी से पक्षपात नहीं करता है, प्रभु सब पर मेहरबान, प्रभु सबसे प्यार करता है। क्या आज हम इस बात को जांचें, मेरी की तरह सरप्राइज करते हैं जब हमारे जीवन में कभी कुछ इस तरह से मिरेकल्स होता है, चमत्कार होता है, जब हम उसको जब समझते हैं यार ये किस तरह से हुआ, हाउ इट हैपन इन आवर लाइफ। यह परमेश्वर की तरफ से एक मिरेकल्स होता है, परमेश्वर की तरफ से चमत्कार होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं, जिस प्रकार से मदर मेरी सरप्राइज थी और उसके बाद उन्होंने सरेंडर अपने आप को किया, टोटली सरेंडर टू गॉड। इफ यू सरेंडर टू गॉड, सी द वंडर इन योर लाइफ। अगर मदर मेरी ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, बी एवरी ह्यूमन बीइंग। यह क्रिसमस का जो समय है, जो क्रिसमस का आगमन, जो प्रभु का आगमन किसी एक धर्म, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि यह प्रभु यीशु मसीह का आगमन पूरे मानव जाति के लिए है, पूरे मानव जाति को शांति देने के लिए, पूरे मानव जाति को उद्धार करने के लिए, मोक्ष देने के लिए, जीवन देने के लिए, हर्ष देने के लिए, आनंद देने के लिए, न कि किसी को भेदभाव, किसी के ऊंच नीच में बांटने के लिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन शांति का दूत, शांति का राजकुमार, शांति का प्रभु, जिसका अंत नहीं होने वाला, वो पूरी मानव जात से प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। बशर्ते हमें उस मेरी की तरह अपने आप को उसके वचन पर विश्वास करना है। वचन ही परमेश्वर है, वो कहती है कि तेरे वचन के अनुसार, वचन खाली नहीं जाता, इसलिए वी हैव टू बिलीव। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे, हम इन्हीं वचनों को जांचें और परखें और खुदा के प्यार में बने रहें। प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद आप सब में बना रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ निकाया का अकीदा। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है।
हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का ही एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुछ चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुद्दस की कुदरत से कुंवारी मरियम के मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। वह रूहुल कुद्दूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंत है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताज़िम होती है। वह नबियों की ज़ुबानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। ऐ आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सबके लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे से फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सबके लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सबके लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सबके लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सबके लिए जो उनकी मदद करते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सबके लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सभा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सबके लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों के एकता, मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दोघर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाए। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श की तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। ऐ रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ऐ आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। जैसे हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाया है, हम ये दुआ करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुतल्लक खुदा बाप, बेटा और रूह कुदूस की बरकत
आप सब पर, आप सबके साथ अब से लेकर और हमेशा तक होती रहे। आमीन।